Now we will study ahead, just like you know already that organic acid, we have studied about that, and we have already learned some example of organic acid also. Just I'm using some link. All the person who is there inside the classroom, they can use the link provided by me. You can use or go through YouTube previous link. You can use previous link. Those students who is inside the classroom, they can share the link. Actually link is not copied from a link is working already, and the person who knows my number, they can share the link with your friend. Just it will take a few seconds. Okay, you can share. और आप लोग कोई भी पर्सन जो है, कोई भी एक पर्सन जो है एक लिंक मेरे पास शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि वही लिंक हम आराम से यूज कर पाएंगे. एंड यू नो, ये तो लाइव ऑलरेडी दिख ही रहा है. ये लाइव भी दिख रहा है, तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं. अब शेयर एक हम लिंक सब लोगों को शेयर कर दे रहे हैं. देखिए ये यूज करके शायद ये वर्क कर जाएगा. अगर ये वर्क कर रहा है तो आप वर्क इसी से आप ज्वाइन कर पाएंगे. अगर लिंक वर्क करने लगे तो आप यहाँ टेक्स्ट कर देंगे. आई थिंक लिंक अब वर्क कर रहा है लिंक. ओके आशुतोष. अब लिंक वर्क कर रहा है, जितने पर्सन है उनके पास. बताइए, अब लिंक वर्क कर रहा है. So now all the person who is there, who is waiting for class, they can join. Now we will start the class. You know, in previous topic you have already studied about different types of acid and the definition of bases also. In previous class we have learned about acetic acid, carbonic acid, sulfuric acid and phosphoric acid also. So now we have already learned also that non-metallic oxide are acidic in nature, and when they are dissolved in water, they form acid. And carbon react with oxygen and make carbon dioxide. Sulfur react with oxygen make sulfur dioxide, and phosphorus when react with oxygen, then it will form phosphorus pentachloride. I think voice is clear. वॉइस क्लियर है सब लोगों के पास. गुड इवनिंग यू ऑल. गुड इवनिंग यू ऑल. वेलकम. Welcome you all. Now you know already that we will go ahead and we will learn about the bases. In previous topic you have already studied that what is organic acid. You know the organic acid now,
and you have taken some example also. Okay, गुड इवनिंग यू ऑल। सब लोग क्लास में आ भी चुके हैं, और हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि प्रत्येक दिन अभी जो है लिंक के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस सब तरह के प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखेंगे कि सॉल्व हो जाए। ओके, सो एसिड, you know already that what is acid. Okay, now we will learn about the bases. Namaste you all, एंड ज़्यादा कोशिश करें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी के संबंध में ही हम लोग ज़्यादा देखें, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के बारे में देखेंगे आशुतोष और विवेकानंद। आई एम गुड, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, नाउ यू नो we will learn about the bases. Just I have to connect the page. Okay, now you can see the board now. Bases. So if we talk about base, just wait 1 minute. Now bases, you know, those substance which change red litmus solution to blue, those substance which change red litmus to blue litmus solution, you can also write solution to blue, is called blue are called bases. ओके, तो वैसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस ब्लू कर दे वो क्या कहलाएगा, बेसिस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, ओके, एसिड बेस इंडिकेटर्स, इतना तो समझ में आ रहा होगा। बेस एक्चुअली सॉल्ट, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तब वो सॉल्ट और वाटर क्रिएट करेगा, गॉट इट। जब ये बेस हम लोग देखेंगे क्या कि बेस तब बनेगा जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, गॉट इट। इतना में कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा होगा क्लास। आप लोग अपना जो है बताएंगे, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप जो टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि आफ्टर क्लास आई विल आस्क क्वेश्चन, व्हेन यू विल रिप्लाई देन आई विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड बेटर, गॉट इट। नाउ यू नो एसिड बेस इंडिकेटर, वी विल टॉक अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर, ओके। acid base indicator, those substance which change the color in acid and base, those substance
substance which change the color in a seed and base are called a seed base indicator. गॉट इट। इसमें बताएंगे आप लोग प्रॉब्लम है क्या समझने में। आशुतोष, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे क्वेश्चन जो है वो मैं बता दूंगा, और पहले तो हम लोग क्लास में जो बेसिक टर्म्स है उसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, और आप लोग बेहतर ढंग से समझ जाएंगे तो हमें बताएंगे भी, ठीक है। So if we talk about we can take one example also. Turmeric also act as indicator, you know, turmeric act as an indicator. गॉट इट। टर्मेरिक जो है एक इंडिकेटर के तरह व्यवहार करता है। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर got it। Those chemical substance which change their color in acid, those substances which change their color in acid and base. Those substances which change their color in acid and bases are called synthetic indicator। गॉट इट। इतना में समझ में आ रहा है? किसी को प्रॉब्लम है इतने समझने में? बहुत सारे पर्सन तो अभी तक जुड़े भी नहीं हैं। बोलेंगे बहुत सारे पर्सन अभी तक तो जुड़े ही नहीं है। वॉइस क्लियर है सब लोगों का? वॉइस क्लियर है सब लोगों को? बोलेंगे? सारे लोग को अच्छे से सुनाई दे रहा है? ओके। और बहुत सारे लोग जो है अभी तक ज्वाइन भी नहीं किए हैं, तो आप लोग चाहें तो उसको
मैंने ऐसे भेज दिया है, सब लोगों को भी लिंक भी मैंने भेज दिया है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी आपको ये भी बताते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डिफरेंसेस बिटवीन सिंथेटिक इंडिकेटर एंड एसिड बेस इंडिकेटर। ओके, you know, synthetic indicator sometimes also known as, हाँ, आप सही कह रहे हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर में तो लिटमस पेपर भी है, वास्तव में वो भी है, तभी तो हम अभी एक बात और भी कह रहे हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर समटाइम आल्सो नोन एज acid base indicator. Got it? And you know the example of acid base synthetic indicators are, you know, just methyl orange एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज। ओके, मिथाइल ऑरेंज। और आप कह सकते हैं फिनेनेप्थलीन, फिनेनेप्थलीन, फिनेनेप्थलीन एंड मिथाइल ब्लू, मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन, मिथिलीन ब्लू। इसको बोलेंगे मिथिलीन ब्लू। ये सभी जो है सिंथेटिक इंडिकेटर है। ओके, ये सभी जो है सिंथेटिक इंडिकेटर है। ओके, जी हाँ, फिनेनेप्थलीन सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि कुछ ऐसे टर्म्स जो कि जानना हम लोग को ज़रूरी है। जैसे कि हमने आपको बताया था कल मिनरल एसिड, कल हम लोगों ने देखा था मिनरल एसिड। गॉट इट? अच्छा, अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसको समझने में दिक्कत है क्या, बताएंगे? अब एसिड के कुछ जो सिचुएशन है उसमें हम लोग समझते हैं कि ये डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड होता क्या है। तो उसमें हम लोग समझते हैं कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोज एसिड हुज कंसनट्रेशन इज़ वेरी लो आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, यानी जिसका कंसनट्रेशन बहुत कम होगा, यानी जिसका कंसनट्रेशन कम होगा वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। चलिए, तो अभी हम कुछ एग्जांपल जो आपको, ओके, बेस समझ में नहीं आया, ठीक है, तो बेसिस हम बताते हैं। तो हमने आपको एक बातें और भी बताई थी, कल ही बताया था मैंने कि दो सब्सटेंस हुज टेस्ट इज सॉर व्हेन इट इज टेस्ट, व्हेन substances are tested and if its taste is sour then it will acid. Okay, and those substance which sour is basic property, soft, it will feel soft. आप साबुन भी हाथ से छूते हैं वो भी सॉफ्ट जैसा दिख रहा होता है, तो बेसिक प्रॉपर्टी का होगा। ठीक है, लो कंसंट्रेशन तो डाइल्यूट होगा, लो कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा, डाइल्यूट, यानी कमज़ोर एसिड होगा, उससे आपके हाथ नहीं जलेंगे। जैसे कि आपके शरीर में नेचुरल इंडिकेटर को भी डिफाइन, ऐसे तो मैंने नेचुरल इंडिकेटर को डिफाइन कर ही दिया है, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम लोग समझते हैं
कि यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर जो है वो, और फिर कोई भी जो सब्सटेंस है जो फील सॉफ्ट, जैसे कि आप जान रहे हैं सोपी फीलिंग आएगी। जैसे आपको ये पता होगा कि हम अगर साबुन को अगर हाथ में लेते हैं, तो साबुन को हाथ में ले रहे होते हैं तो वो बड़ा ही मतलब सॉफ्ट महसूस हो रहा होता है, तो वो बेसिस प्रॉपर्टी का होगा। मतलब एक इन जनरल अगर हमें समझना होगा तो अगर कोई सब्सटेंस आप खा रहे हैं, अगर वो कड़वा आपको लग रहा होगा तो वो बेसिक नेचर का होगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। ओके, इफ यस देन यू कैन राइट यस। कह सकते हैं सही बात है कि दो सब्सटेंस हुज टेस्ट इज बीटर एंड फील्स सोपी, कह सकते हैं। इसमें तो समझ में आ रहा होगा बात, बोलिए। इतने में प्रॉब्लम है, इतने में प्रॉब्लम है। इतने में प्रॉब्लम है। इफ यस देन यू कैन राइट यस, इफ नो देन यू कैन राइट नो। प्रॉब्लम है तो आप उसमें लिखेंगे, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो लिखेंगे नो। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम देन ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यू नो ऑलरेडी प्रीवियस डे हमने आप लोग से बात किया था, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल एसिड के बारे में। मिनरल एसिड हम लोगों ने देखा भी था, आई मीन सॉरी, देखा तो नहीं, मतलब हमने डिफाइन भी किया था। चलिए अब हम लोग समझते हैं ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मिनरल एसिड। Those acid which are obtained from minerals, those acid which are obtained from mineral, those acid which are obtained from minerals are called mineral acid. ओके, यानी ऐसा एसिड जो मिनरल से मिल रहा होगा उसको हम लोग मिनरल एसिड बोलेंगे। गॉट इट? ऐसा एसिड जो हमें मिनरल से मिल रहा होगा क्या कहलाएगा? मिनरल एसिड। ट्राई बेस्ट प्रीवियस डे जो है, जैसे आप लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा थे, आज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थोड़ा सा कम है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारे लोग जो है ज्वाइन कर पाएंगे। अगर ज्वाइन करते हैं तो अच्छा रहेगा। और ये हाँ, HCl जो है वो आप देख लीजिए H2SO4 है, लेकिन H2SO4 की भी बात है, वो भी मिनरल एसिड में आ ही जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड में आ जाएगा। और मिनरल एसिड भी आपने देखा ही है। चलिए, तो H2SO4 आपके पास मिनरल एसिड है। और एक बात और भी याद रखेंगे कि मिनरल एसिड H2SO4 ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल, यानी किंग ऑफ केमिकल किसको बोलेंगे? किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एंड यू नो H2SO4 also known as oil of vitriol, oil of vitriol, H2SO4 also known as oil of vitriol। याद रहेगा, इसका नाम है। और आपको ये भी पता होगा कि H2SO4 का यूज हम लोग सबसे ज़्यादा जो है कार की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी या ट्रक की बैटरी वगैरह में इसका यूज हम लोग
करते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड की का एग्जांपल ले ले, HNO3। नाइट्रिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है, और याद रखेंगे कि इसको हम लोग एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं, एक्वा फोर्टिस। ओके, और पता है कि नाइट्रिक एसिड का यूज अक्सर जो क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज वगैरह के लिए किया जाता है, याद रहेगा। ठीक है, तो इसको इसके जो कुछ नेम है, HNO3 जो है उसको हम लोग एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं, ध्यान रहेगा। प्रॉब्लम नहीं, अच्छा। फिर हम लोग समझते हैं HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग स्पिरिट ऑफ सॉल्ट कहते हैं, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, याद रहेगा, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, यानी हम लोग इसको स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। मिनरल एसिड में ये जो है कुछ यूजेस था, और आपको पता है कि HCl जो है हम लोग देखते ही हैं कि सैनिटरी वेयर्स और जो भी है साफ़ सफाई के लिए, और इवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हम लोग के शरीर में भी है, यानी आपको पता है कि जो बेली है, या कह लीजिए कि पेट के अंदर जो एसिड होगा, वो स्पिरिट मीन्स नहीं, एक्चुअली उसका नाम है स्पिरिट ऑफ एसिड। ओके आशुतोष, चलिए, और ऑर्गेनिक एसिड तो हम लोग जानते ही हैं। ऑर्गेनिक एसिड के बारे में हमने कल बात भी किया था, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में आप लोग समझ भी रहे थे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट, ओके, electrolytes, those substance which forms ions, those substance which form ions when it is reacted so we can say that electrolytes are those substance electrolytes are those substance which form ions, when it dissolve in water। ठीक है, यानी वैसे सब्सटेंस जो डिसॉल्व होते हों वाटर में और आयंस क्रिएट करते हो। आपको पता ही है कि चार्जेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जब हम लोग कोई भी देख रहे होते हैं कि कोई भी अगर ये रिएक्ट कर रहा होता है सब्सटेंस, तो वो या तो पॉजिटिव आयंस होगा या फिर निगेटिव आयंस होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि ये आइदर पॉजिटिव या फिर
क्या हुआ भाई, क्या सर्च करने की ज़रूरत पड़ गई? गूगल सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जब ये आयंस फॉर्म करेगा, हम कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आयंस कितने तरह के, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयंस। आपको पता है चार्जेस भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इनसाइड द क्लासरूम दैट ऑल elements, the smallest particles of substance, atom, and outermost orbit electron is there. outermost orbit में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर वो कोई डोनेट कर रहा होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, अगर कोई रिसीव कर रहा होता है तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इतने में कोई दिक्कत है? इतने में कोई दिक्कत है बताइए। चलिए अब हम लोग समझते हैं पॉजिटिव आयंस। मान लीजिए अब कुछ नोट्स आप समझ लेंगे। अगर पॉजिटिव आयंस रहेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैटायन, ओके। और अगर निगेटिव आयंस रहेगा तो उसको बोलेंगे एनायन। अगर निगेटिव रहेगा आयन तो क्या बोलेंगे, एनायन। गॉट इट। पॉजिटिव रहेगा, हाँ हमने आपको बताया है कि आयंस क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया है ना कि एटम जो होता है, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट किया तो डोनेट करने के बाद जो है, अगर कोई रिसीव कर रहा होता है तो वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जो डोनेट कर रहा होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो वही पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आयंस हुआ और निगेटिव चार्ज निगेटिव आयंस हुआ। आई थिंक विवेक समझ में आ गया होगा। नो प्रॉब्लम। दिक्कत नहीं है। Now we will talk about the type of electrolyte. Okay, type of electrolyte. You know about the type of electrolyte. You know, when you will go in class 8, when you will go in class 8, then you will learn about the electrolyte. So I want that you should know about the electrolyte also right now. एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसका फंडामेंटल पार्टिकल है। ओके, विशाल है, चलिए अच्छी बात है। सौम्या, उसमें एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी उसका बेसिक पार्टिकल है एटम का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई थिंक आप लोग क्लास में ये पढ़े होंगे। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए पहले तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, जितने भी अभी जो आप लोगों ने पढ़ा है, कि हम लोग देखते हैं आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था क्लासरूम में, जैसे आप लोग सिर्फ पढ़ाई से ध्यान रखते हैं तो हम लोग आर्ग्यूमेंट में ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे, और आप लोगों को बेहतर ढंग से ये पता भी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। एक हम आपसे पूछ रहे हैं कि एसिटिक एसिड, चलिए क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की तरह पूछ लेते हैं। आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, हम लोग देखते हैं क्या कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ओके,
एसिटिक एसिड के बारे में हम लोग देखते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ आप बताएंगे कि एसिडिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो एग्जाम्पल किसका है एसिडिक एसिड, ये आप हम लोग को अभी आप बताएंगे जल्दी। एसिडिक एसिड किसका एग्जाम्पल है आप बताएं जल्दी। एसिडिक एसिड किसका एग्जाम्पल है बताइए। ओके, एक आंसर आया ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा आया स्ट्रॉन्ग एसिड। और बताइए जल्दी जल्दी कौन सा एसिड है। ऑर्गेनिक, चलिए ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, चलिए फिर से ऑर्गेनिक एसिड। यानी देख रहे हैं कि किसका आंसर ज़्यादा वैसा आ रहा है, ठीक है। तो आप एक बात आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी एसिड, जैसे कि पहली बात तो हम आपको बता दें कि चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि आप लोग आंसर क्या क्या देते हैं, ये देखना है हमें जल्दी क्विक। आंसर दीजिए कौन सा एसिड है ये। चलिए आप लोगों ने बताया ऑर्गेनिक एसिड है, गुड। एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड ही है, गॉट इट। एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड ही है। और आप लोग बेहतर ढंग से ध्यान दे करके पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा सा आंसर भी दे रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, स्ट्रॉन्ग पहले तो समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को तो मैंने बता ही दिया। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा आपका टाइप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और दूसरा हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और इन सभी के बारे में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। पहले तो ये जान जाए कि इलेक्ट्रोलाइट के टाइप कौन कौन से हैं। तो एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और उसी तरीके से एसिड भी जो है एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होगा वीक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो अक्सर वीक एसिड में आएंगे। ऑर्गेनिक एसिड जो होगा वो अक्सर वीक एसिड में आएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड अभी आपने लिखा था ना एसिटिक एसिड, वो ऑर्गेनिक एसिड था इसलिए वो वीक एसिड है, गॉट इट। आप लोग समझ में आ रहा है सब लोगों को। चलिए नाउ हम लोग देखते हैं एक हम लोग समझते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। ओके, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। concentrated acid, okay, those acid which contain minimum amount of water, those acid which contain
minimum amount of water, amount those acid which contain minimum amount of water. ओके तो ऐसा एसिड जो कम से कम अमाउंट ऑफ वाटर रखता है वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड, आर कॉल्ड concentrated एसिड। और आपको पता होगा कि कंसंट्रेटेड एसिड जो है जैसे कॉन्क, अगर कंसंट्रेटेड को शॉर्ट फॉर्म में कॉन्क CONC डॉट ये भी कहते हैं, और 39% यदि HCl रहेगा तो वो कंसंट्रेट हो जाएगा। HCl की बात करें, चलिए इसमें बताइए कि इतना में समझने में दिक्कत है क्या क्लास? इतना समझने में आप लोग को कोई दिक्कत है, बताएंगे? Yes, then you can write yes. Say about, is there any problem class? क्या कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, बुक का भी आपका सॉल्यूशन मिल रहा है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब आप ऐसे समझिए, चलिए हम आपको कुछ बातें आपको बताते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप अगर एक गिलास शरबत बनाते हैं, ठीक है, अगर आप एक गिलास शरबत बनाते हैं और उसमें किसी एक गिलास शरबत में 2 गिलास है, हम आपको कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। हाँ, नोट कर लीजिए, नोट करना ही है, सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप अगर कोई 2 गिलास शरबत बना रहे हैं, एक गिलास पानी यानी भरा हुआ है, और जितना पानी पहले वाले गिलास में है उतना ही पानी दूसरे वाले गिलास में भी है। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि अगर एक गिलास में आप 4 चम्मच चीनी डालिए, दूसरे गिलास में अगर 2 चम्मच चीनी डालिए, तो जिसमें 4 चम्मच आपने चीनी डाला है तो उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा, तो कंसंट्रेटेड, और जिसमें चीनी की मात्रा कम वो डाइल्यूट। अब यहाँ पर समझिए, तो अब वहाँ पर आप बोलेंगे कि सर आप तो अभी बताए थे कि जिसमें वाटर की मात्रा कम होगी वो कंसंट्रेटेड, अभी तो वाटर की मात्रा ज़्यादा है। तो हम लोग वाटर को कांस्टेंट लिए थे और किसको बढ़ा घटा रहे थे, तो चीनी की मात्रा को, तो उसके आधार पे चीनी की मात्रा उसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड, और कम रहता तो कम कंसंट्रेटेड। शायद अब समझ में आ गया होगा, बोलिए। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई एसिड है 1 ml और 1 ml में अगर 1 ml एसिड में अगर 0.2 ml 1 ml एसिड में 0.2 ml यदि वाटर हो, और दूसरे वाले कोई एसिड है उसमें अगर मान लीजिए कि 1 ml एसिड है और उसमें 0.3 ml वाटर हो, तो जिसमें वाटर की मात्रा कम होगी वो कंसंट्रेटेड होगा, और जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी वो कंसंट्रेटेड नहीं होगा, और जो नहीं होगा कंसंट्रेटेड वो डाइल्यूट होगा। आई थिंक नाउ गॉट इट, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। सेम टर्म्स, दोज एसिड विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड डाइल्यूट, ठीक है। इतना समझ में तो आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुई होगी। इतना में किन्हीं को दिक्कत है समझने में? डाइल्यूट, हाँ वीक एसिड कह सकते हैं, बट वीक एसिड का डेफिनेशन हम लोग आयन के आधार पर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आप लोगों को आयन्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट सिंपल सी बात है, जिसमें जो इस एसिड की क्षमता कम होगी
वो वीक होगा, और जिस एसिड की क्षमता ज़्यादा होगी वो स्ट्रांग होगा। यानी आप कह सकते हैं व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड आर डिजॉल्व इन वाटर, ये भी कह सकते हैं। चलिए, सब कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं यानी क्वेश्चन मांग रहे हैं। डाइल्यूट एसिड भी समझ गए और कंसंट्रेटेड भी समझ गए। बताइए, अभी तक जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं शायद बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बोलिए। चलिए, नहीं है प्रॉब्लम तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों को अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि एसिड और बेस हम लोग पढ़ें और पीएच वैल्यू ना पढ़ें तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू थोड़ा सा पढ़ना अच्छा रहेगा। और हम लोग अभी पीएच वैल्यू पढ़ पाएंगे या नहीं, थोड़ा सा ये टाइम भी देख लेते हैं, क्योंकि सब लोगों को खाना खा करके सोना भी रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला है वो H2SO4 है। मैंने कल बहुत सारे एसिड का नाम बताया था, ठीक है, बहुत सारे एसिड का नाम बताया था मैंने। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, हम वीडियो नंबर दे देंगे, वीडियो नंबर 1 यानी क्लास 1, क्लास 2 यानी वीडियो नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से मतलब किस दिन का है। हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर एसिड के कुछ अपने पार्टिकुलर नेचर भी होते हैं, तो हम लोग पार्टिकुलर नेचर भी एसिड का पढ़ेंगे। और फिर जैसे कि एक्वारेजिया पावरफुल एसिड होता है, 1:3 का होता है, यानी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर 1:3 में मिलाते हैं तो एक्वारेजिया बनता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एसिड की बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, फिर बेसिस, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को सॉल्ट पढ़ना है, ठीक है। तो सॉल्ट को यदि हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग कहेंगे क्या कि एन एसिड रिएक्ट विथ बेस, एन एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनाता है जो क्या कहलाता है, सॉल्ट, ठीक है। एक जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जो क्या कहलाएगा, सॉल्ट। चलिए देख लेते टाइम आपका हो कितना बाकी है। पक्का टाइम हुआ है, बस यही है कि हमने थोड़ा सा 2-4 मिनट 10 मिनट लेट शुरू किया था, तो 2-4-10 मिनट और भी आगे पढ़ ले। हाँ, हम आपको ये एक बात और भी बताना चाहेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको याद भी करना पड़ेगा। कितने पर्सन को एटॉमिक नंबर याद है? वो यस लिख करके टेक्स्ट करेंगे अभी। कितने पर्सन को एटॉमिक नंबर याद है? एटलीस्ट 30, एटलीस्ट 30, जल्दी क्विक, एटलीस्ट 30 याद होना चाहिए। चलिए, एटलीस्ट 30 हमें याद होना ही चाहिए। चलिए, विवेकानंद बोल रहे हैं मुझे पूरा याद है, गजब, चलिए बहुत अच्छा। एटलीस्ट 30, अगर 30 याद है देन यू आर इंटेलिजेंट। आप अपने क्लास में 6 तक में अगर 30 याद कर ले रहे हैं, 7 में जाने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है, एकदम कंप्लीट। और बहुत सारे पर्सन आपको आपके ही क्लास में मिल जाएंगे जिसको 118 पूरा का पूरा याद है। क्या कोई ऐसे पर्सन है जिनको 118 तक पूरा याद हो? कितने पर्सन है 118 वाले? वो 118 टाइप करेंगे। अच्छा ठीक है, आशुतोष को पूरा याद है 118 तक। और किसको किसको याद है?
कल हम लोगों का टॉपिक होगा, ऐसे भी आपके पास बहुत ही कम, कल जो है हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे और सिंपल सिंपल रिएक्शन भी पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, और आज जो है आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से आज समझ में आया होगा। फिर कल का क्लास हम लोग अरेंज करेंगे, बट कल संडे है तो हम लोग कल क्लास नहीं करेंगे। मंडे को एक बार पूरा जो है क्लासेस मंडे से शुरू करते हैं। ओके, ओके क्लास, सो गुड नाइट यू ऑल। क्वेश्चन चाहिए? ओके, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप हमें बताएंगे कि चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, एक्वा फोर्टिस कौन से केमिकल का नाम है? एक्वा फोर्टिस किस केमिकल का नाम है? जल्दी क्विक टेक्स्ट कीजिए, और कोई पर्सन देख के नहीं बताएंगे। एक्वा फोर्टिस किस केमिकल का नाम है? बोलिए। नहीं पता, किन्हीं को भी नहीं पता, यानी क्लासेस सही तरीके से आज आप नहीं किए हैं। एक्वा फोर्टिस किस केमिकल का नाम है, बताइए जल्दी। अरे वाह, आंसर तो आने लगा, आप लोग देख के बोले होंगे आंसर। अच्छा, आप लोग जितना अभी पढ़े हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है? चलिए अब गुड नाइट। गुड, आंसर भी हमने आप लोगों ने अच्छे से दिया है, बहुत अच्छा रहा क्लास। गुड बाय, गुड नाइट।